तो समझ आएगा। Hello and a very good afternoon to all the lovely audience who have tuned in to our parent station today. I know the time of 3 p.m. is a time when you all must have completed all your household chores and must be planning to have a cozy nap. But let me tell you, today we have invited a charming lady on our station who is going to teach us healthy granola chocolates. Yes, dear friends, chocolates. Chocolates who makes us smile. Chocolates which are affordable and are eaten by all age चॉकलेट्स groups. पड़े Chocolates creates उषा memories. सीधे Yes, के बाद लाओ. everyone is involved in eating of chocolates because of emotional reaction, reasons. Yes. So it's my favorite too. So without much delay, let me welcome Ms. Rekha Wadhwani, who has done her management course in food and catering. She's running her cooking classes from past 15 years under the name of Food Art Studio. She's also a she's also a home baker and a cloud kitchen maker also. Welcome Rekha ji to our studio. Hello Samiksha, very good afternoon. Very good afternoon, and I'm very much excited to learn about this healthy chocolate. You know, Oh, chocolates are everyone's favorite. And जब हम ये chocolate बनाएंगे and mama can give 2, 3, 4, 5 जितनी खानी खा सकते हो तो how good it would be. it Yes, would be otherwise very हमेशा nice. रोक टोक होती है. No, you Yes, will get yes, only yes. one. Yes, so let's No, no, start. Samiksha, this is very interesting recipe. और you can say कि मैंने मेरे बेटे को चाइल्डहुड से when बच्चों को तो आपने देखा जैसे you told ना कि उनको लगता है एक उनके हाथ में होता है चॉकलेट एक मुंह में होता है and 2-3 chocolates they already have there in the pocket. तो ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है कि चॉकलेट वर्ड ही अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है या इतना टेम्पटिंग है दैट एवरीबडी वांट्स टू हैव इट नॉट ओनली किड्स बट इवन ग्रोन अप टिल टुडे इवन व्हेन आई एम वेरी मच अपसेट आई जस्ट पिक अप एन चॉकलेट एंड आई हैव इट और मुझे उसके बाद बहुत अच्छा फील होता है तो चॉकलेट एक ऐसी चीज है जिसको खाने के लिए हम हमेशा बहुत टेम्प्ट होते हैं बट द रीजन इज कि क्या वो इतना हेल्दी है एक क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है तो आज हम जो चॉकलेट बनाने वाले हैं ना एक्चुअली इट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रानोला granola Okay. nowadays everybody must be very fancy name granola but everybody must be knowing the word granola so we were making granola in the form of chocolate isn't it interesting Samiksha Very interesting. Granolas we eat as in cereal in our breakfast, and now in form of yes chocolates. So it's going to make wonders. Let's so let's start, start the and you recipe could. Yes, yes, definitely. so I will just tell you basic ingredients of this chocolate these are rolled oats is it properly visible now all the ingredients You can zoom little bit okay okay if possible. या श्योर तो थोड़ा सा जूम कर थोड़ा सा कैमरा आके खड़ा नाउ इट्स फाइन Yes. okay this is a power pack called rolled oats everybody must be knowing about the oats but these are some different oats these are called rolled oats these are more healthier than your regular cooking oats the reason is it's totally gluten free. The word gluten Okay. free is very common nowadays, but it's very healthy, full of protein. देखिए किड्स जो होते हैं ना बच्चों को कोई भी हेल्दी चीज जब खिलाने पे आता है ना तो इट्स अ टारगेट इट्स अ बिग टारगेट फॉर द मदर्स कि हम उनको एक हेल्दी सा कुछ खिलाएं तो वो कई बार टारगेट बन जाता है पर जब हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग करके खिलाते हैं ना तो दे रियली एंजॉय इट तो हमने ना इसमें ओट्स लिए हैं जो मोस्टली अवॉइड होते हैं हमारे मील्स में तो दिस आर रोल्ड ओट्स दिस इज कॉर्नफ्लेक्स this are some crunchy nuts and I am using some seed ribbon and
a must important thing is peanut butter, a power pack of protein. So I'm using peanut butter, and to give much flavor, I'm adding hazelnut paste. You have many other options in the form of hazelnut paste that I will just let you know when we will start the recipe. So now we will just start the recipe. First we will just roast our oats, and we will dry roast it in our pan, in our regular non-stick pan, and we will just roast it for a minute, not more than that. We just have to dry roast it. So we are just roasting the oats for a minute. For a minute, hardly a minute. So the Okay. raw form of oats, it's not that tasty. When we'll roast it ना, जब हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ना, तो वो क्रंची हो जाएगा. थोड़ा सा उसमें जो कच्चापन होता है ना ओट्स का, वो चला जाएगा. तो हम उसको अच्छे से रोस्ट करेंगे हाई फ्लेम पे ही और जस्ट अ मिनट. And you just have to constant stir it. आप इसको बना के अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो अपने जार्स में. एंड यू कैन शाम को जब बच्चों को थोड़ी सी भूख लगती है तभी भी आप उनको दे सकते हो ये चीज विदाउट एनी गिल्ट. Yes, because obviously it's very healthy, so you will just feel like okay, कोई बात नहीं, खा लो. बच्चों को भी खिलाओ और हम भी खा लेते हैं. जी. चलो ये रोस्ट हो गया है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज वी विल नाउ रोस्ट अवर nuts. You can use any of the nuts. Here I am using almonds, walnuts, and I'm using some pumpkin seeds. You can even use sunflower seeds and melon seeds, but I find more flavorful using this all nuts. You can use even cashew nuts. So you just have to roast it till it gets little crunchy. Okay, all the seeds which you are mentioning are easily available, Rekha? Yes, The pumpkin yes. seeds. Pumpkin seeds, melon seeds, sunflower seeds, you can easily get in any supermarket or even on Amazon. Even Okay. rolled oats, you can get it at any store, and even you can get it on Amazon also. The all ingredients which I am using now, they all are easily available. So they are just done. Now the thing is, we are done with our roasting part. We have roasted our oats and nuts. Now simply we have to grind it, but not in the exact powder form. We just have to coarsely grind it. I have done this part beforehand. I have just Rekha, it would be grinded. nice if we can see you also. If you can just shift your Sure. camera a little bit towards. Yeah. Now I am visible. No, we can just see till your neck. Yes. Okay. Now Now a I'm little visible, bit more up. Yeah, that's better. That's Okay. better. Thank you so much. Just I have grinded this thing, oats and our nuts very coarsely. I have not make a fine powder of it. If you will make fine Okay. powder, na, you won't feel crunch in your chocolate. So to feel the crunch part in the chocolate, we just have to coarsely grind it. And I have just coarsely grind both the things separately. And now we have to do mixing. You must be knowing that nowadays many of kids and even elders are having the problem of gluten allergy. Many Yes. people are getting allergic to gluten even. So I just prefer to use gluten-free oats. So you can easily, anybody can have it. And nowadays many of them are on diet also. Even nowadays kids are very much conscious about their protein content in the food and that all things. Now they are getting more knowledge about food. So they are very much conscious. So I just prefer to give them a very nice thing, that is a bar or chocolate in the full form of protein. So just we have to mix both of this
which I have already coarsely grinded it. And for more crunch in this, I'm just taking a handful of cornflakes and just grinding it with my hands. I just take 2 tablespoons around of cornflakes, and this is totally optional. It's not compulsory to use cornflakes. I just use cornflakes because it gives very nice crunch in your chocolate. Yeah, that's what. It was sounding crunchy also. Yes. Now the main part. Look, you must have many of the options when it comes to the preparation. जैसे अगर मैं ये सब लेके बैठी हूँ, मान लो इसमें अगर मेरे पास पीनट बटर है ही नहीं घर पे अवेलेबल, so I won't rush to the market to purchase an peanut butter. So I must have any option for peanut butter. If you are not having peanut butter, then you can simply use your salted butter, जो आपके घर में easily available होता है. कई बार अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो घी तो आपके पास है ही घर में, है ना, तो आप वो भी ले सकते हो. नेवर स्टक टू द रेसिपी और नेवर स्टक कि नहीं हमारे पास पीनट बटर नहीं है तो हम नहीं बनाते हैं. प्लीज डोंट डू दिस. यू जस्ट हैव मेनी ऑफ ऑप्शंस. So I am using peanut butter because of good flavor and good nutritive value. Otherwise, you can use your regular salted butter. You can use desi ghee in your food. So both are equally good. So now I am mixing just 2 tablespoons around peanut butter. Okay, so this is one more wonderful tip, which even if you don't have peanut butter at home and you are planning to make a granola chocolate, don't think, so I don't have a peanut butter, so I can't make it. You can use ghee, you can use the normal butter. That's really great. Very nice. Yeah. And now for a much flavor, I'm using hazelnut paste. Look, hazelnut paste again is an optional thing. ठीक है, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना तो आपके पास वैसे भी ऑप्शंस होने ही चाहिए. क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं प्लान करती हूँ कि आज मुझे ये चीज़ बनानी हो, कई बार कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग होते हैं घर पे, तो हमको लगता है यार छोड़ो ना, नहीं बनाते हैं. पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमको एक ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि हम चलो इसके बदले कुछ नया ट्राई करते हैं. सो अगर आपके पास हेज़लनट पेस्ट है, so you can use 2 tablespoons of your hazelnut paste. And if you are not having hazelnut paste, not to worry at all. You can use honey, you can use your maple syrup, or else you can just use your melted chocolate even. Okay. So you are Okay, having so there are many of options. Yeah. Now we will instead of just give a mix. hazelnut paste, you can use honey. You can use, what was the one more thing which you said, Rekha? Maple syrup. Maple syrup. It's Okay, a yeah. Maple yeah. syrup. Melted chocolate. Microwave में. Now we will just mix all these things. Now I am making my hands little bit messy. This portion is to be done with hands because we have to make balls out of it. Now we will just mix all the things nicely. And it's so delicious. Samiksha, I would like that you must have tasted this all things here. It's looking tempting right now only. Let's see. Look, this all have been mixed properly. And now we So just I just wanted to know, Rekha, that ये जो इसमें जो थोड़ा सा मीठापन आएगा, that will be because of the hazelnut paste. हेज़लनट पेस्ट. इट विल गेट स्वीट. देखिए नट्स जो होते हैं ना, उनमें अपनी जी. थोड़ी बहुत स्वीटनेस होती ही है. सिर्फ Okay. हमारे ओट्स में स्वीटनेस नहीं है और हमारा जो कॉर्नफ्लेक्स है वो स्वीट नहीं है, तो उसको स्वीट करने के लिए हम हेज़लनट पेस्ट डालें, हम हनी डाल सकते हैं, हम मेपल सिरप डाल सकते हैं. वी हैव मैनी ऑप्शंस. तो हल्की सी जो स्वीटनेस है वो हमारे पास आएगी हेज़लनट पेस्ट से, पर्टिकुलर फॉर दिस रेसिपी. और अगर आप हनी डालते हैं या मेपल सिरप डालते हैं, जैसे इस रेसिपी में वी हैव एडेड 2 tablespoons ऑफ पीनट बटर एंड 2 tablespoons ऑफ हेज़लनट पेस्ट. ओके, इफ यू आर एडिंग हनी, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज कि हमें कितना डालना है. हमें इतना डालना है कि ये इस तरह से डो फॉर्म में आ जाए.
You must be Okay, seeing okay. that this is in the form of like this ball. It's properly visible ना? देखिए Yeah, ये yeah. ऐसे It's a बॉल फॉर्म में, okay, okay. है ना? ये इस तरह से आना चाहिए. अगर आपको लगता है कि थोड़ा कुछ कम है, अगर हनी डाल रहे हो, तो आपको इस तरह से बाइंडिंग मिल जानी चाहिए आपके सारे इंग्रेडिएंट्स में. आपको उतना ही हनी डालना है. तो ये मैंने हेजलनट पेस्ट डाल के इस तरह से उसको एक बड़े से बॉल फॉर्म में बना दिया है. नाउ आई एम मेकिंग सम स्मॉल स्मॉल लड्डूज आउट ऑफ इट. The size depends on your requirement dear. कि अगर आपको बड़े बड़े बॉल्स बनाने हैं तो आप बड़े पोर्शंस में डिवाइड कीजिए. अगर छोटे से बनाने हैं यू कैन टेक स्मॉल बॉल्स इवन. इस तरह से आपको स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में इनको डिवाइड करना है. एंड यू हैव टू मेक समीक्षा. यू नो whenever I make this granola chocolates ना, मेरा बेटा है 18 साल का. आई वुड लाइक टू शेयर. वो हमेशा ये Yeah. बॉल्स ऐसे ही खा जाता है. वो कभी वेट ही नहीं करता है कि मैं इन बॉल्स को चॉकलेट में कोट करूं. इवन ही लव्स दिस इन हिज टिफिन आल्सो. नाउ ही हैज ग्रोन अप. नाउ ही इज इन द कॉलेज. बट Okay. वो बहुत ज्यादा फ्रॉम whenever I prepare this recipe ना, now he is too smart. वो अभी बड़ा हो चुका है, वो खुद ही बना लेता है. तो ये रेसिपी ऐसी है ना कि आपके बच्चे भी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मदर. कि भाई हम अपने मम्मियों पे डिपेंडेंट नहीं रहे, इंग्रेडिएंट्स उठाएं और खुद ही बनाएं. या वेरी ट्रू. बिकॉज अगर हम सारी चीजें रोस्ट करके पहले ही अगर स्टोर कर देते हैं तो देन देयर इज जस्ट अ मिक्सिंग थिंग व्हिच वी हैव टू डू, नथिंग एल्स, यस एंड देन द एग्जैक्टली. बाइंडिंग ऑफ द थिंग्स एंड मेनी ऑफ किड्स इज. लव कुकिंग. आई आपके हैड पेरेंट्स वन. स्टेशन में ऐसे बच्चे हैं जो कुकिंग करते हैं. Yes, yes, today they are going to learn now. Today they are going to learn. You are here to show them. So Okay. I'm very much sure all the lovely ladies out there will definitely try this chocolates for the eve of Yes. Christmas also. Yeah, it's a Christmas time, and even I conduct many of workshop with my kids. Then they just love, and it's very lovely to teach kids because they have tremendous energy. They work with so much energy now. Samiksha, I Very just true. love to work with kids. So we will Okay, I from had little one little. question, Rekha, that right Yeah. now it is winter. So honey and ये सब ठीक है, but summers में क्या ये थोड़ा melt हो जाएगा? And नहीं, we need to बिल्कुल keep भी in मेल्ट नहीं होगा. freezer or somewhere? हाँ, नो 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 नो. अगर समर्स हैं तो आप है ना हनी को अवॉइड करके हेजलनट ही लें, क्योंकि हेजलनट में Okay, अपनी बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है. विंटर्स में okay, आप हनी ले लीजिए. और मेपल सिरप यू कैन यूज इन एनी सीजन. देखिए जहाँ तक ये okay, बॉल्स की बात है ना, ये मेल्ट नहीं होगा. हाँ, अगर अहमदाबाद का जैसे क्लाइमेट है, इट ऑलवेज गोज टू 40-42 डिग्रीज इन समर्स. तो तब yes, आपको ये रहेगा कि ये मेल्ट हो सकते हैं. बट प्रिजर्वेशन इज बेस्ट थिंग कि अगर आप उसको कैसे प्रिजर्व करते हो. आई नेवर कीप माई चॉकलेट्स इन फ्रिज, नेवर. क्यों? क्योंकि okay, मैं उनको हमेशा ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता हो. okay, चॉकलेट्स को सिर्फ सनलाइट नहीं लगना चाहिए बस. फिर आप उसको बाहर रखो, इट वोंट इवन मेल्ट इन 42 डिग्रीज टेम्परेचर. okay, okay. कि देखिए हमारे सारे बॉल्स रेडी हैं. नाउ द Yeah, you can मोस्ट little इंटरेस्टिंग bit zoom so that we can थिंग. या see how yummy it is. Yeah, आप थोड़ा सा बाउल और पास लाइए रेखा जी. हो गया. Yes, yes, very nice. Wow, so tempting. यस, वही तो कह रही हूँ. मैं मिस कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं टेस्ट नहीं करवा पा रही हूँ. नहीं तो ये चीज इतनी टेम्पटिंग है कि अगर आप टेस्ट करोगे तो इट विल बी कि भाई आपको पता पड़ेगा कि ये कितनी हेल्दी भी है और कितनी ज्यादा डिलिशियस भी है. Now we will come to the second portion of this recipe. That is the Yes. final presentation. अभी तक तो ये सिर्फ हमारा ग्रानोला बॉल है. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट. देखिए चॉकलेट्स हमेशा हम लेते हैं ना, दैट इज द कंपाउंड, नॉट एग्जैक्टली द चॉकलेट. एवरीबडी मस्ट बी नोइंग द कुकिंग चॉकलेट. काफ़ी सारी ब्रांड्स आती हैं इसमें. जैसे मैं पर्टिकुलरली आई यूज आइदर वेलियर और मॉडे.
जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये डार्क चॉकलेट है जो मैंने लिया है, जिसको मैंने सिंपली माइक्रोवेव में मेल्ट किया है फॉर 40 सेकेंड्स। ओके, ठीक है, हर 40 एक का सेकेंड्स। माइक्रोवेव, हाँ 40 सेकेंड्स, हर एक के माइक्रोवेव का जो है ना मेल्टिंग होता है या टेम्परेचर होता है वो डिफर करता है, बट द मैक्सिमम टाइम इज 1 मिनट। और दूसरी बात, आप जब भी चॉकलेट मेल्ट करें ना, एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपका चॉकलेट रेफ्रिजरेटेड नहीं होना चाहिए। मेनी ऑफ देम क्या करते हैं, वो लोग बाजार से चॉकलेट लाते हैं, दैट इज अ कंपाउंड चॉकलेट। मैं जैसे ही अपना ये सब पूरा होगा ना, आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ चॉकलेट विच आई एम यूजिंग। वो लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। चॉकलेट को फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं होती है व्हेन इट इज कम्स टू कुकिंग चॉकलेट। जो मॉडे है या वेलियर है, जो भी हम चॉकलेट मार्केट से परचेज करते हैं ना, दिस ऑल आर कुकिंग चॉकलेट। सो यू कैन इजीली स्टोर इन योर कबर्ड, बट खाली एक ही चीज है कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर आपका चॉकलेट अच्छे से कबर्ड में स्टोर्ड है तो इट विल टेक हार्डली 40 to 50 सेकेंड टू जस्ट मेल्ट लाइक दिस। आपका चॉकलेट ओके। इतना स्मूथ होना चाहिए, देखिए इट इज जस्ट फ्लोइंग, है ना। यस यस। नाउ दिस इज, आई एम टेकिंग द डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो इसमें 3 टाइप ऑफ चॉकलेट आते हैं, डार्क, मिल्क एंड वाइट। इसमें मैं 2 ही चॉकलेट यूज कर रही हूँ, दैट इज वाइट एंड डार्क। ओके, अब हम एक सिंपल सी चीज करेंगे, हम अपना बॉल लेंगे, we will dip in our chocolate, we will eat, हेलो, नहीं आ रहा है, हेलो, वो लॉकड आउट हो गई। यस रेखा। इसके पास तेरा नंबर है? रेखा, हाँ, आई एम हियर। हेलो, या, ओके, आई एम वेरी मच हियर। okay, 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 I thought that it has been disconnected or something network issue। नो नो नो। चीज़ा चाहिए नीचे से। देखिए, मैंने ना एक चॉकलेट को कोट किया है। आपको सिंपली यस। अपना बॉल लेना है, ग्रेनोला बॉल, एंड यू हैव टू डिप इन योर मेल्टेड चॉकलेट। इसको अच्छे से आप इस तरह से 2-3 बार टर्न करके अच्छे से कोट कीजिए। पिक अप विद द स्पून एंड जस्ट आपका एक लाइनअप किया हुआ प्लेट है, उस पे रखिए। देखिए, मैंने इसको लाइनअप किया है सिंपली विद बटर पेपर। जो मैंने नीचे पेपर रखा है, जो यूज किया है, इट्स सिंपल ऑफ बटर पेपर। आप कोई भी प्लेट पे बटर पेपर कट करके रखिए इस तरह से, और उसके ऊपर आप चॉकलेट रखिए। डायरेक्ट प्लेट पे प्लीज मत रखिएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो स्टिक हो जाएगा। ओके। ये पार्ट जो है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। लास्ट समर्स में जब मेरे किड्स के साथ बैच थी, तो मैंने जी। उनको ये सिखाया था। वो क्या कर रहे थे, ये सारा चॉकलेट उठा के दे वर जस्ट licking द चॉकलेट एंड दे वर जस्ट एंजॉयिंग द चॉकलेट मेकिंग। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर, कि आपका फीडबैक मुझे जरूर जानना है कि आप लोगों को ये Definitely, will कैसा लगा। definitely give you the feedback. Yes. And one more thing I want to ask कि ये जो coating है, सिर्फ वो पूरा बॉल उसमें cover हो जाए, then we have to take it out. Yes. यस, सिंपली देखिए, मैं आपको बता ही रही हूँ। जैसे आपने ये बॉल लिया, आई थिंक इट्स क्लियरली विजिबल Yes. आपको। That's why I was just putting off my video so that they can see. Don't worry, I'm here only. Only my audio is. ओके ओके, हमें सिर्फ इसको अच्छे से 2 से 3 बार फ्लिप करना है अपने मेल्टेड चॉकलेट के बाउल में। देन वी हैव टू जस्ट टेक इट इन द स्पून। आपको स्पून को अच्छे से नीचे से एक्स्ट्रा चॉकलेट हटाना है, और यू जस्ट हैव टू डिप इट इन द प्लेट। इट विल गेट इजीली कोटेड। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ आपका चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोवेव में इजीली विद इन अ मिनट, पर जब भी आप माइक्रोवेव में चॉकलेट मेल्ट करें, डोंट गिव द स्ट्रेट टाइम ऑफ 1 मिनट। आप उसको 30 सेकेंड्स के टाइम पे, ड्यूरेशन पे उसको मेल्ट करें।
और आपका चॉकलेट रेफ्रिजरेटेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये देखिए हमारे प्रिटी से ग्रानोला बॉल्स रेडी हैं। दिस ऑल आर, वो है इधर ही। नाउ वी विल प्रिपेयर सम white balls। अभी विंटर्स है तो ये बहुत इजीली अच्छे से जल्दी से ये सेट हो जाते हैं। अब मैं इसको सिंपली व्हाइट चॉकलेट में भी डिप कर रही हूँ। प्रीवियसली मैंने इसको डार्क चॉकलेट में डिप किया था, अब मैं इसको व्हाइट चॉकलेट में डिप कर रही हूँ। वी जस्ट, आप इसको अच्छे से फ्लिप करो एंड दिस इज डन। मुझे स्प्रिंकलर्स नीचे ना टेबल पे ही पड़े थे। देखिए व्हाइट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ग्रानोला का फिलिंग दिख रहा है तो आप उसको डबल कोट भी दे सकते हैं। And this is done with the white chocolate। इसको हम फ्रिज में रखेंगे फॉर हार्डली 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 2 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। 2 मिनट से ज़्यादा इसको सेट होने की ज़रूरत नहीं है, वो फटाफट चॉकलेट सेट हो जाता है। और अभी तो विंटर का टाइम है, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है आपके पास तो इसको आप फ्रिज में भी मत सेट कीजिए, इसको आप बाहर भी हाफ एन आवर के लिए भी रख देंगे ना तो चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगा। जस्ट यू नीड पेशेंस। अगर आपको इसको बाहर सेट करना है तो आपको हाफ एन आवर के लिए छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप 2 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखिए। नाउ दिस इज डन। अब जो बाकी का चॉकलेट है उसको हम डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे। ये आइसिंग बैग्स हैं, ये हर जगह, ये भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। यू हैव टू जस्ट फिल लिटिल बिट ऑफ चॉकलेट इन दिस। अब हम अपने चॉकलेट्स को थोड़ा डेकोरेट करेंगे। चॉकलेट तो बन गए, उसका डेकोरेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। किसी को भी कोई डाउट है?
ऑडिबल है, विजिबल नहीं है। हेलो, सेट हो गया होगा। Yes, Rekha ji, किसी को I'm कोई here. डाउट है? ओके No, you please continue. ओके, देखिए हमारे बॉल्स फ्रिज में मैंने सेट करने रखे हैं जस्ट फॉर 2 मिनट्स, इट वोंट टेक मोर टाइम Okay, क्योंकि अभी विंटर्स okay, हैं। अगर समर्स हैं तो आप उसको 5 to 7 मिनट्स के लिए रखो, पर अगर विंटर्स है ना तो इट विल हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स। ये okay. देखिए आपके इस तरह से बॉल्स रेडी हैं। आप चाहो तो अगर जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है जो बाहर आया है उसको आप रिमूव कर सकते हो। इसे नाइफ ले लेना इसका से। ये देखिए विद इन 2 मिनट्स ये फ्रिज में अच्छे से सेट हो गए हैं। Okay. ठीक है, आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही हेल्दी सी चीज़ अपने बच्चों को खिला सकते हो विथ अ वेरी लेस एफर्ट्स। और वो है ना, बच्चे है ना मार्केट का चॉकलेट भी खाना भूल जाएंगे, प्लस दे विल गेट अ वेरी गुड एंड हेल्दी थिंग। Very true. And it's just like so easy to make and बहुत कम time में. हाँ, विद इन हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स इफ यू आर हैविंग एवरी इंग्रेडिएंट प्रिपेयर्ड इन योर हैंड। अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप इजीली इसको 10 to 15 मिनट्स में ही बना सकते हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वी विल जस्ट कार्व इट आउट विथ अ नाइफ। आजकल हम बर्थडे पार्टीज में भी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देते हैं। यू कैन जस्ट प्रिपेयर दिस चॉकलेट्स, गेट एन अट्रैक्टिव बॉक्सेस Yes, और आप ये चीज़ें भी गिफ्ट कर सकते हो बच्चों को। या आपके घर में भी इट्सेल्फ पार्टी है, सो यू कैन प्रेजेंट और गिफ्ट एज अ रिटर्न गिफ्ट फॉर द किड्स बर्थडे और योर जस्ट किड्स पार्टी। wonderful idea. Return gift में भी आप ये chocolates दे तो they will love it. After all, it's a हाँ, homemade chocolates and होममेड healthy. चॉकलेट्स। और आजकल होममेड चीजें आफ्टर दिस कोविड प्रॉब्लम ना, द होम Mm, मेकर्स एंड होम मेकर्स आर इन ऑलवेज इन द रश एंड वेरी बिजी प्रिपेयरिंग दिस ऑल स्टफ। क्योंकि हमारे पास अब डिमांड ये हो गई कि हम मार्केट का कुछ भी खाना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ कोविड। हर कोई डर रहा है बाहर से कोई भी चीजें जल्दी से खरीदने में भी। द थिंग इज दैट कि ये सेफ है, आपने खुद ने बनाया हुआ है विथ योर ओन हैंड्स, और ये बहुत ज्यादा हाइजीनिक भी है with very less ingredients, with very less effort and with very कह सकते हैं न्यूट्रिटिव फूड। आपको पता yes, होगा कि ओट्स, पीनट बटर दे आर फुल ऑफ प्रोटीन। और मुझे तो ये देखा गया है कि बच्चे प्रोटीन बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं अपने खाने में। नाउअडेज किड्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू द जंक फूड। तो आप उनको yes, ये सब खिलाएं और बहुत अच्छे फॉर्म में खिलाएं, तो उनका हेल्थ में भी वो रहेगा कि वो लोग हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। सॉरी वो लोग हेल्दी चीजें खा रहे हैं विद अ वेरी नाइस न्यूट्रिटिव वैल्यू, और आपको एफर्ट भी नहीं लगाना है ज़्यादा। देखिए हमारे बॉल्स रेडी हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो उसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ये हमारे चॉकलेट्स जो हमने वाइट चॉकलेट में कोट किए थे। okay. So whatever extra chocolate जो है हम उसको हटा रहे हैं just to give हटा a रहे good हैं। look. इट्स हाँ Yes, गुड लुक। अदरवाइज अगर आप घर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको एज इट इज भी खाना है देन नॉट्स एन प्रॉब्लम एट ऑल, पर ये थोड़ा लुक अच्छा आए और वो एक्स्ट्रा चॉकलेट रिमूव हो जाए, इसलिए हम उसको जस्ट एक थोड़ा सा कार्विंग दे रहे हैं एजेस को। it's just बट similar जैसे वो लड्डू बनाते हैं
और जब लड्डू को हाँ घुमाते हैं और जो चूरा बच जाता है ना, बट वो भी हम खा लेते हैं, सो दिस इज ऑल्सो गुड ओनली। यस देखा। यस ये चीज है ना कहीं वेस्ट नहीं होने वाली है, ये सब यस। हमारे पेट में ही जाने वाली है। सो इट्स नॉट टू वरी कि इसका कोई भी यानी थोड़ा सा भी पोर्शन कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है, हम इसको पूरा या, पूरा यूज करने वाले हैं। ये वेरी ट्रू। देखिए आपके व्हाइट एंड ब्लैक ग्रानोला चॉकलेट बॉल्स आर रेडी। अब हम थोड़ा सा डिजलिंग करेंगे विथ चॉकलेट एंड देन इट्स डन। देखिए मैंने जो ये चॉकलेट है इसको जस्ट एक हम्म। आइसिंग बैग में फिल कर दिया है और इसको मैं हल्का सा कट कर दे रही हूँ। अभी विंटर्स हैं तो हमारी चॉकलेट जब तक हम फिल करें तब तक भी जम जाती है। ओके। इसलिए मैंने बोला अच्छा। ना कि यू डोंट इवन नीड टू हम्म। कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर। ये देखिए या। आप देख सक रहे हैं मैं डिजलिंग कर रही हूँ। यस यस, डोंट वरी, आई जस्ट गो ऑफ स्क्रीन। वेरी वेरी टेम्पटिंग। वही कह रही हूँ समीक्षा, आई एम मिसिंग कि मैं आप लोगों को टेस्ट नहीं करवा पा रही हूँ। अदरवाइज ये चीज ऐसी है ना कि बस बनी और मुंह में चली जाती है सीधा। दैट्स व्हाट, सामने लड्डू है पर खा नहीं पा रहे, सामने खा चॉकलेट है नहीं पर खा। पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं बस। पर हमने सीख लिया है। इसका प्लस पॉइंट ये है समीक्षा कि यू ऑल हैव लर्न दिस वंडरफुल चॉकलेट रेसिपी। अब आप बनाइए, उसकी फोटो क्लिक कीजिए और समीक्षा आप टेल योर मेंबर्स टू जस्ट पोस्ट द पिक्चर्स इन द ग्रुप। या, so almost 12, how many we have made out of 1 cup वन of? टू थ्री दिस इज ऑलमोस्ट 12 से भी ज्यादा है, 18। Okay, okay, more than 12, wow, that's really good. दे आर 17 चॉकलेट्स। देखिए 1 कप Okay, ही 7. हमने ओट्स लिया है। और देखिए द मैटर इज कि हमने खुद बनाया है, हेल्दी बनाया है, इट्स हाइजीनिक, इट्स इवन पॉकेट फ्रेंडली। यानी ये हमको Yes. इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। तो हमें हर चीज जब घर पे बैठे इजीली हम बना सकते हैं, तो गो फॉर दिस रेसिपी एंड जस्ट
ट्राई इट और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सारी चीज़ें लगी कैसे। और आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू रेसिपी, यू कैन इवन आस्क मी कि आपको कोई भी अगर कोई डाउट आ रहा है रिलेटेड टू इंग्रेडिएंट्स और द रेसिपी फॉलोअप, यू जस्ट आस्क मी कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। और जो मैंने आपको चॉकलेट बोला था विच आई एम यूज फॉर दिस काइंड ऑफ चॉकलेट, दिस इज कॉल्ड कुकिंग चॉकलेट, या ये कह सकते हैं इट्स अ कंपाउंड चॉकलेट। ये हर जगह इजीली अवेलेबल है। आपको इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है, भले समर्स भी हैं, कितनी भी गर्मी है, सिर्फ आप इसी कबर्ड पे रखिए जिस कबर्ड में डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती हो, है ना। ये आपको कभी भी, चाहे वो विंटर्स हो, समर्स हो, रेनी सीजन हो, दिस इज अ वाइट चॉकलेट which I have used and this is a dark chocolate which I have used for this recipe। तो आप इसको बाहर रखिए ताकि आपकी चॉकलेट्स बहुत इजीली फॉर्म होंगे और बहुत जल्दी बनेंगे। रेफ्रिजरेटेड चॉकलेट हमेशा मॉइस्चर छोड़ते हैं और वो स्पॉइल हो जाते हैं। 90% पीपल क्या करते हैं समीक्षा, वो जहाँ से चॉकलेट लाते हैं ना बाजार से, वो है ना फ्रिज में रख देते हैं, तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है और जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो पानी छोड़ता है और चॉकलेट इतना फ्लोइंग फॉर्म में मेल्ट नहीं होता है। तो वो अच्छे से मेल्ट हो उसके लिए सबसे बढ़िया टिप है कि आप कुकिंग चॉकलेट को कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं कीजिए, उसको बाहर ही रखिए, सिर्फ सनलाइट से बचाइए। Okay, okay. Wow, that was so nice, so delicious, and so tempting. And all the chocolate holic people out there, go and try this. Eat as many as you can and gift as many as you can. Khao, khilao, khud bhi khao. Very nice. नहीं Thank you नहीं, so much, Rekha. You came to our parent station studio and it was you my showed us pleasure this. dear Samiksha. It was even my pleasure. I just love to work for kids and even the parents too. So it was very nice to work with you, Samiksha. Hope we will work sometime again. But this recipe is Surely will just definitely awesome. invite you once again. Just let me Thank know you in so your much. comment. Thank you so much. Thank you so much for this delicious chocolates which you made. Thanks a lot. Okay, see you soon. It's my pleasure. Okay, goodbye, audience, and do try this, making this yummy chocolates and give us the feedback. Thank you. Okay.